ڈسکشن کرے. سچوالہ جی کا جو بھی اعتراض ہے اس کو آپ کلیئر کریں. یہ میں نے لنک شیئر کر دیا ہے سچوالہ جی کی. سچوالہ جی کے بارے میں 1 سیکنڈ بولوں, 2 سیکنڈ. نہیں, ان کو جانا ہے تو آپ ان کے بارے میں ابھی نہیں بولیے. ان کے چینل پہ آپ جڑیے گا, وہ آپ کو اچھے سے ٹریٹ کریں گے وہاں پہ. اتنا ہی بولنا تھا کہ آپ دونوں تھے 2.5 گھنٹے کی ڈیبیٹ مفتی یاسر صاحب کی, وہاں پہ آپ لوگ ہاں بول کے ہر چیز ایکسپٹ کیا ہے, کچھ بول نہیں پائے, اور آپ ہی آج دیکھ رہا ہوں میں ادھر بول رہے. غلط بات ہے. 1 منٹ سنو, یہ جھوٹ بات نہیں کرنا ہے آپ کو کہ ہاں بول کے ایکسپٹ کر لیا. کوئی ہاں بول کے ایکسپٹ نہیں کیا, بلکہ وہاں پہ ثابت کیا گیا کہ اللہ جو ہے وہ تھرڈ پرسن نہیں ہے, اور یہ جو قانون یا کرائٹیریا جو بتا رہے تھے وہ بھی صحیح نہیں ہے. یہ سب بات وہاں ہو گئی ہے, تو یہ مت بولیے. آپ کا مائک بند کر لیجیے یار پلیز, بہت پرابلم ہو رہی ہے. ہاں بس اتنا ہی, اور کچھ نہیں اس بارے میں. ہاں 1 منٹ چلیے. یہاں پر کہہ دوں, سن لیجیے, اسلام فری تھنکنگ کی اجازت نہیں دیتا. جی, یہ بھائی صاحب سے کہیں کہ اپنا نام بدل دیں اگر وہ اپنے آپ کو جو ہے مسلم کہتے ہیں. 479 پڑھ لیجیے پاک قرآن کی. نہیں دیتا, کوئی میرا چیلنج ہے. سورہ النساء کی 479 پڑھ لیجیے ابھی آپ اس سمے اسکرین میں لگے. بتائیے وہ آیت میں کیا لکھا ہے, بتائیے کیا لکھا ہے. انسان کے ساتھ جو بھی اچھائی ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, اس کے باوجود انسان فری ول ہے, کچھ بھی غلط کرے گا اس کا ذمہ داری خود ہوگا. نہ فری تھنکنگ قرآن سے ثابت نہیں ہے. اسلام فری تھنکنگ کی اجازت نہیں دیتا. ایک بار اسکرین میں لائیے 479. نہیں دیتا, مجھے پتا ہے میرے جناب, میں بوڑھا ہو گیا پڑھ کے. آپ مجھے پڑھاؤ گے نہیں دیتا. قرآن 479 نا, اجازت نہیں دیتا. ہاں, ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک وارسلناک للناس رسولا وکفی باللہ شہیدا. یہ والی whatever good befalls you is from Allah and whatever evil befalls you is from yourself. مجھے بالکل نہیں ہے بھائی. ہاں سچوالا جی, یہ جو آیت ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں فری ول ہے. یہ کون سی آیت کہہ رہے ہو؟ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 79. میں اسکرین بھی آپ کو بتا دیتا ہوں. میوٹ کرو یار, کس کی ابھی مائک سے یہ ہو رہا ہے, آواز ڈبل ہو رہی ہے, ایکو ہو رہی ہے آواز. میرا تو صحیح ہے. فری تھنکر ہی ہے, وہ فری تھنکر ہی ہے. آپ کے اس میں پرابلم ہے. ٹھیک ہے, تو میں میوٹ کر لیتا ہوں ابھی. ہاں میوٹ کر لو. جی سچوالا جی, یہ آیت آپ کے سامنے ہے. جی, اس میں لکھا ہے 1 منٹ, یہ 79. ہاں, ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک وارسلناک للناس رسولا وکفی باللہ شہیدا. اس کا مطلب ہے تم کو جو بھلائی ملتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے, اور جو برائی پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے نفس کی طرف سے ہے. ہم نے تم کو تمام لوگوں کو پیغام پہنچانے والا بنا کر بھیجا ہے, اور اللہ کا گواہ ہونا کافی ہے. اس میں کہاں کون سی فری تھنکنگ ہے بھائی؟ نہیں, اس کا تصویر میں جا کے میں نے پورا پڑھا, اور اس میں بنا تصویر میں بھی اتنا سمجھ سکتے جو غلط ہمارے ساتھ ہوتا ہے وہ ہم اپنی خود کی کیوں پر غلط ہوتا ہے. ابھی میں ابھی ایکس مسلم بن جاؤں گا, کچھ بھی کر سکتا ہوں, کل فلم مسلم بن سکتا ہوں, چلتے ہوئے کسی کو میں لات مار کے گرا سکتا ہوں, کسی کا ریپ کر سکتا ہوں, اس کا اللہ ذمہ دار نہیں, میں خود ہوں, اس کا سزا مجھے ملے گا, لیکن میں کر سکتا ہوں, اللہ اس کا اجازت دیتا ہے مجھے. اسی آیات میں پوری تصویر میں پڑھیں گے, اسی آیت میں اس کی پورا اجازت ہے. دیکھیں, تفسیر کی بات نہیں کر رہا ہوں, اس آیت کی کون سے لفظ میں فری تھنکنگ ہے مجھے بتائیے. یہ اصل متن میرے اس وقت ہمارے سامنے ہے. اس آیت کے کون سے لفظ میں فری تھنکنگ ہے بتائیے. تفسیر کی بات نہیں کر رہے نا, انسان کے ساتھ جو بھی اچھا ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, اور انسان جو اپنی کچھ بھی غلط کرتا ہے تو وہ اس کا ذمہ دار وہ خود ہے, اور اس کا سزا اس کو ملے گا آخرت میں. ارے میرے بھائی, اچھے برے کی جو ہے پہچان آپ کیسے کریں گے؟ اگر میں عربوں کی ذہنی غلامی کر لوں تو وہ اچھی بات ہے. کسی کی غلامی کرنا اچھی بات ہے. لیکن غلام تو انسانیت میں پیدائش سے غلامی آ گئے, ابھی بھی داس پروتا چالو ہے. غلامی تو ہمارے انسان کی بنیادی مقصد ہی ہے, غلام رکھنا ایک دوسرے کا. عرب تو 1400 سال پہلے آیا, لیکن 5000 سال پہلے بھی غلام تھا.
अरे मेरे भाई, मैं यही तो पूछ रहा हूँ ना, अरबों की ज़हनी गुलामी करना क्या आप अच्छा समझते हैं? उसको हसना कहेंगे आप? हसना कहेंगे? गुलामी किसी का भी करना पसंद नहीं मुझे, तो फिर आप और क्यों कर रहे हैं? इंसान को गुलाम रखना ही नहीं चाहिए, इंसान आजाद होना चाहिए। भाई आप क्यों कर रहे हैं फिर अरबों की ज़हनी गुलामी? क्यों कर रहे हैं? गुलामी कहाँ कर रहे? तो ज़ाहिर बात है, अल्लाह अरबी है, रसूल अरबी है, नबी अरबी है, कुरान अरबी है, जिस किताब को कुरान कहा गया वो अरबी है, हदीस का भंडार अरबी है, तारीख, अफकार, हर चीज़ अरबी है। और आप जो हैं असल में आप भारत से हैं, अखंड भारत से हैं, और आप कर रहे हैं अरबों की ज़हनी गुलामी। क्यों कर रहे हो? लेकिन अल्लाह साफ साफ कहता है, इस दुनिया में जितनी जबान है, हर जबान में हमने एक एक अपना अंबिया, अपना प्रॉफिट को भेजा है। एक आयत पेश और करें, सुनिए, अब आप जरा सुनिए, आप जो है कुरान की कोई एक आयत पेश करें कि हर जबान में मैंने एक नबी को भेजा, कोई आयत पेश करें, नबी को भेजा, बताइए। नहीं, नबी देखिए, उसमें अंबिया किराम बहुत सारे होता है, उसमें भी फैक्ट है, जैसे रसूल में, प्रॉफिट में, अंबिया में, ये सब फर्क आता है बहुत सारे। क्योंकि मेरे भाई आप जरा ये तो बताएं, नबी किसे कहते हैं? आप बताइए, नबी कौन होता है? किसे कहते हैं नबी? जैसे हमारे कृष्णा वाले कृष्णा जी आया, राम जी आए, उनको हम नबी कह सकते हैं। बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आपसे ये पूछ रहा हूँ, पहले आप नबी को डिफाइन करें। नबी किसे कहते हैं? नबी कौन? हाँ, वही लोगों के बीच एक अच्छा इंसान है जो ऊपर से डायरेक्ट कनेक्ट होता है अल्लाह मियाँ से या भगवान से, आप लोग जो भी कहो, और वो जमीन में वो अच्छा संदेश देता है, ऐसा करो वैसा करो, सारे अच्छे काम करने के लिए भेजा जाता है। अरे भाई, मैं भी तो जो है जिंदगी भर अच्छे काम करता रहा हूँ, क्या मेरे भी तो क्या आपके ख्याल में मैं नबी हो गया? आपके साथ कनेक्ट है क्या, ऊपर से डायरेक्ट कनेक्ट है कि किसी ऐसा कोई देवी देवता, जैसे कोई फरिश्ता आया, कोई मैसेज दिया आपको आज, तो कैसा हुआ क्या? आपको साबित करना पड़ेगा ना कि जो है जिसे आप कह रहे हैं कि उसके पास फरिश्ता आया, आपके पास कोई सबूत है? इसका सबूत है? हाँ, उसका सबूत है, चांद की 2 टुकड़ा कर दिया, उस टाइम लोगों ने देखा, लेकिन बोला ये जादू है, लेकिन क्या ना, वो तो मिरेकल हुआ है उस टाइम भी, और भी बहुत सारे ऐसा चीज हुआ है। गुलामी इस कदर छाई हुई है आपके जहन पर कि आपने चांद के 2 टुकड़े को जो है, ये बोंगी को आपने सच मान लिया। नहीं, बोंगी क्या, उस टाइम की हिस्ट्री के बुक में, बाकी सारे चीज में भी वो चीज हुआ है। मेरे भाई सुनिए, जी जी, इतनी बड़ी बात थी इंसानी तारीख की कि चांद के 2 टुकड़े हो गए, तो कुरान के लिखने वाले को ये चाहिए था कि ये बात कुरान में पेश करता कि चांद के 2 टुकड़े हो गए हैं। कुरान में है ये जो ये अच्छा ठीक है, ये जो मौजूदा हुआ, ये आप बिलीव करते हो या नहीं? अरे मेरे भाई, बिलीव करना मोमिनों का काम है। आप बिलीव करते हो कि नहीं? नहीं हूँ। ठीक है, सूरज को निगल जाना ये बिलीव करते हो या नहीं? सूरज को अपने मुंह में घुसा देना बिलीव करते हो? मैं कब करता हूँ? मेरे पास कोई बिलीव नहीं है। तो इंसान की छोटे से बच्चे की गर्दन में हाथी का सर लगा देना ये बिलीव करते हो? अरे मेरे भाई, मैं बिलीव नहीं अरे करता। भाई, लेकिन सच वाले जी से क्यों पूछ रहे हो? मैं करता हूँ, ये मिरेकल हो सकता है। अरे मेरे भाई, इसीलिए आप सुन लो ना, देखें, ये ऑलरेडी काफी है भाई। का काम है, मानना बच्चों का काम है, और मैं बच्चा नहीं हूँ, मैं जानना चाहता हूँ। आप तो बच्चे नहीं है, वो तो आपकी आवाज से मालूम पड़ रहा है, बच्चे नहीं है, और हम भी इतना छोटे नहीं है, 36-37 साल का है, 15 साल का रिसर्च किया है इसी में। वाले जो होते हैं वो बच्चे ही होते हैं, ज़हनी तौर पर गुलाम होते हैं। गुलाम तो है ऑलरेडी। अभी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मोदी जी को, दास प्रथा को खत्म करो इंडिया से। अभी भी 22-23% लोग ऐसा है जो दास प्रथा की पीढ़ी से रहा है। कुरान की बात कर रहा हूँ मैं, आपसे नबी की बात कर रहा हूँ मैं, आपकी जो है जो अरे नबी की तो मैं वही कह रहा हूँ, अपना कृष्ण वाला इस्लाम की बात कर रहा हूँ। महाभारत की जंग खत्म हुआ, वहाँ पे 80 लाख गुलाम को पकड़ा गया, एक ऋषियों को 8 औरत को लोंडी को दिया गया है, स्लेव गर्ल्स। एक हमारे फ्रीमैन जी का एक मस्त सुपर चैट आया है कि टाटा स्काई नबी, डायरेक्ट कनेक्शन ऊपर से। नहीं भाई, डायरेक्ट कनेक्शन अल्लाह से सिर्फ मूसा अलैहिस्सलाम का था। डायरेक्ट कनेक्शन था भाई, पहाड़ पे खड़े रह के अल्लाह को आवाज देगा, बिना व्हाट्सएप के, बिना फोन के, डायरेक्ट उसके बुलाने पे अल्लाह में डायरेक्ट नीचे आके जवाब देता था भाई। समझे, खाली मूसा अलैहिस्सलाम, बाकी मोहम्मद रसूलुल्लाह का भी कनेक्शन नहीं था भाई, इधर भी नहीं है। साहिल भाई, हाँ, ये इस तरह की बातें अपने इंडिया में कोई नहीं करता ना मौलाना? नहीं, ये एक नए हमारे मोमिन है। अच्छा, इसमें फिर से बैक टू टॉपिक आते हैं, कम से कम हमको दूसरे मोमिनों को भी मौका देना है। मुझे इजाजत दें दोस्तों,
जी मैं जो सच है वाले जी कल बहुत ओके बहुत शुक्रिया ओके जाना ओके था। चलें ठीक है, बहुत बहुत जी शुक्रिया दोस्तों, ओके चले मैं ये थैंक यू वेरी मच सचवाला जी आने के लिए फ्री भाई थिंकर यार भाई ये यहीं से गए। ये इस्लाम फ्री के गुस्ताखी कर रहे हैं साहिल फ्री भाई, ये थिंकर भाई का इस्लाम का गुस्ताखी कनेक्शन कर दिया हाँ इन्होंने। फ्री थिंकर साहब का कनेक्शन चले अरे यार अच्छा ये फ्री प्रीति थिंकर ह्यूमन भाई जी अभी ज्वाइन हुए नहीं वो चले गए अपना चले मुन्ना गए भाई क्या एमबीबीएस भाई हाँ ये हाँ अपना प्रीति ह्यूमन जी ने अभी ज्वाइन किया था वो फिर से डिस्कनेक्ट हो गई है 1 मिनट रुको तब तक हम एक मोमिन को ले लेते हैं आपको कुछ कहना था क्या फ्री थिंकर भाई को हाँ नहीं नहीं यही, मेरे को अभी कुछ वो नहीं है है नहीं सामने, नहीं तो मैं बोलता था सामने अगर आते थे तो। और ये आ एडम गए भाई हैं सलाम अलैकुम। हमारे दोस्तों जितने लोग देख रहे हैं 5386 लोग सब लोग एडम के नाम पे एक एक लाइक और शेयर कर दीजिए हमारे लाला जी आ एडम चुके हैं भाई लाला जी सबसे इस्तकबाल पहला सवाल इस्तकबाल। आपसे ये है लाला जी सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि हमारे फ्री थिंकर भाई अभी ये कह के गए हैं कि अल्लाह जो है वो गेम चला रहे हैं क्योंकि अल्लाह बोर हो रहे थे क्या कहेंगे आप सर ये मैं उनसे 100% एग्री करता हूँ 100% एग्री करता हूँ। मैं भी एग्री किया भाई मैं भी एग्री किया वो ये बात के लिए अरे ये तो अदनान भाई बोल रहे हैं हमारे। हाँ भाई हाँ तो मुन्ना भाई नाम है अदनान ना भाई भाई का नामकरण हुआ है मुन्ना भाई एक्स मुस्लिम अरे वाह रे वाह मुन्ना भाई हो गया अदनान भाई वेरी गुड जी मुन्ना भाई जी वेलकम वेलकम यार। नहीं ये जो अल्लाह की गेम है बड़ी मजे की है लेकिन मैं असल में आया था उन्होंने जब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाया ना कृष्णा जी को यार मुझे जरा उसके बारे में सवाल करना है अगर वो है तो। अरे अरे उन्होंने चलेगा। हनुमान जी को ही बना दिया प्रॉफिट, पहले नहीं बनाया था, हनुमान जी को बना दिया उन्होंने प्रॉफिट। अच्छा हनुमान यार जी भी ये तो प्रॉफिट हो गए। ये तो हर जगह नहीं है actually। एक मिनट फ्री थिंकर भाई, एक मिनट बस। सचवाला जी आपको फ्री थिंकर से मिलाना चाहूंगा। ये एक आई मीन अहले चॉइस हैं और इनका कहना है कि जो हमारे आई मीन जो राम जी थे वो भी एक प्रॉफिट थे, जो कृष्ण जी थे वो भी एक प्रॉफिट थे। इनका ऐसा मानना, इनका ऐसा कहना है। निशान भाई, आप प्लीज इनसे बात कर रहे हैं, निशान भाई साहिल भाई ने बात कर रखे हैं इनसे, एक बार बात कर मैंने लीजिए। कई बार बात किया है आज के टॉपिक पे बात कर लेते हैं क्योंकि और भी मोमिन भाई जुड़े हैं क्योंकि फ्री थिंकर भाई जो है बहुत बड़ी जलेबी है इनके ऊपर इनके साथ मैंने साइंस के ऊपर एक बात की थी तो वो मैं अपलोड करने वाला हूँ इमाम साहब के चैनल पे। फ्री थिंकर साहब आपके माइक से एको आ रहा है जब आप नहीं बोल रहे हो तो प्लीज आप म्यूट कर लीजिए जी। तो आज के टॉपिक पे आपको क्या कहना है फ्री थिंकर साहब अल्लाह को कुछ फर्क पड़ता है नमाज पढ़ने या नहीं पढ़ने से? जी साहिल भाई, हाँ ठीक है, टॉपिक चेंज करने की जरूरत नहीं, फिर कभी हम और भाई ने जो बोले उस बारे में हम बात कर सकते हैं क्योंकि हमारा जो भी प्रॉफिट के बारे में। तो अभी पहले मैं करेक्शन कर दूं, थोड़ी देर पहले एक भाई ने जो बताया कि वो अबू ताहिर ने लेके गया था हजारे अरे वो वर्षद और आपने मस्जिद में रखा था, पैर के ओ नीचे नहीं है। जनाब ये आपके साथ ऑलरेडी एडम ने डिस्कशन कर लिया है उसको छोड़िए आप ये बताइए आज के टॉपिक पे आपको क्या कहना है? जी और नमाज का ना, हाँ हाँ नमाज पढ़ने या नमाज ना पढ़ने से अल्लाह को फर्क पड़ता है? नहीं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा उनको कोई फर्क नहीं पड़ता पक्का ना? पक्का कोई फर्क नहीं पड़ता। सजा क्यों देता है फिर अल्लाह नहीं पढ़ने पे? हाँ ये गेम है, जैसे अभी साहिल भाई आप गेम है? हाई यूट्यूब में हाँ सुनिए ना, जैसे अभी आप लाइव स्ट्रीम कर रहे हो हाई यूट्यूब में बैठ के, उसका भी कोई टर्म एंड कंडीशन है। अगर आप उसके बाहर जाके कोई आप बात करोगे तो आपका ये वीडियो डिलीट हो जाएगा, चैनल भी डिलीट हो सकता है, यूट्यूब उसका निगरानी रख रहा है। ठीक उसी तरह अगर आप अच्छे बात करोगे उसमें 4-5 हजार लोग देखेंगे, आपको पैसा मिलेगा, चैनल आगे बढ़ेगा। ठीक उसी तरह अल्लाह ने भी इस दुनिया में हमें हर चीज बता के दिया है, तुम अच्छे काम करोगे उसके लिए तुम्हें अच्छा चीज मिलेगा जन्नत में, तुम गलत करोगे तुमको जहन्नम में डाल देंगे। बाकी तुमको फ्री विल दिया गया है, जो मन चाहे वो करो, कोई रुकावट नहीं। ब्रेक लगाओ एक साथ ओ, इतना ओ, नहीं ओ, बोलने भाई, का ओ। मेरे भाई। अच्छा मतलब आप कह रहे हैं कि नमाज पढ़ने से अल्लाह को कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन अल्लाह जो ये गेम चला रहे हाँ वही 2 दिन का जिंदगी है, गेम ही है, और तू ऊपर मतलब से अल्लाह बैठ के सब देख रहा अच्छा है। इंसान सुना गेम 4 दिन खेलते हैं एक मिनट इंसान जो गेम खेलते हैं वो इसलिए खेलते हैं क्योंकि वो बोर हो जाते हैं, उनको लाइफ में कुछ तो भी एक एक्साइटमेंट चाहिए था, इस वजह से इंसान गेम खेलता है, चाहे वो बड़ा इंसान गेम खेले या फिर छोटा बच्चा गेम खेले। सही बात है? जी बिल्कुल। अच्छा अल्लाह भी ऐसे बोर हो रहे थे या एक्साइटमेंट आप अल्लाह को लाना था जो अल्लाह ने ये गेम बना दिया पूरा?
इस बारे में तो ऐसे हमें कोई मतलब उस बारे में ऐसा जो बोर हो जाता है इस बारे में कोई भी हमको पढ़ने को नहीं मिला, लेकिन पहले वो दुनिया को बनाया मतलब उसमें जिन्नात को बेमकसद गेम भेजा। बना दिया अल्लाह ने। नहीं, हाँ, एक नहीं मिनट, जिन्नात लाइन टू लाइन। अरे भाई, लाइन टू लाइन, 1 मिनट रुको। क्या हुआ, एडम भी आया क्या? नहीं, एडम नहीं आया, एडम आज शायद बिजी है। और प्रीटी ह्यूमन जी, आपको भी जुड़ना था तो आप जुड़ जाइए, मैंने तो जगह खाली की थी। अगर आप मैसेज में हैं तो प्लीज मुझे मैसेज कर दीजिए। गालिब भाई भी अगर जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ जाए। फिर मैं कुछ हमारे जो बाकी एक्स मुस्लिम साहब है उनको थोड़ा निकलने के लिए बोलूंगा, जब ताकि दूसरे हमारे एक्स मुस्लिम को जुड़ना है तो वो भी जुड़ जाए, और हमारे जो मुस्लिम भाई है उनको स्टूडियो फुल का मसला भी ना हो। अच्छा, तो ये देखो, दो ही चीज हो सकती है फ्री थिंकर साहब। या जी। तो अल्लाह बोर हो रहा था, एक्साइटमेंट नहीं था अल्लाह के पास, इसकी वजह से गेम बनाया अल्लाह ने। या तो दूसरा ऑप्शन कि अल्लाह बोर भी नहीं हो रहा था, एक्साइटमेंट वाला मसला भी नहीं था, लेकिन फिर भी गेम बना दिया। तो इधर प्रॉब्लम ये आ जाएगा कि फिर अल्लाह ने बेमकसद ये गेम बनाया। बिल्कुल, मैं आपकी बात समझा। शायद वो बोर ही हो रहा था मेरा ख्याल से, क्योंकि उस बारे में तो लिखा नहीं आया, लेकिन वो क्योंकि पहले उसने जिन्नात को बनाया, दुनिया में छुड़ाए, और जिन्नात बहुत फसाद कर रहे थे तो फरिश्ता को भेजा, उनको मार के भगाया। एक दो कैलाश में जाके, कैलाश पहाड़ में एक अभी भी बैठा है, बाकी अरे सब तो कहाँ रुको कहाँ जरा, भाग गए। रुक जाओ, रुक और जाओ, एक तो मिनट रुक जाओ, इंसान एक को मिनट, फिर एक मिनट इंसान को रुक भेजा। जाओ, एक मिनट रुक जाओ। सचवाला जी, आपने सुना अल्लाह बोर हो रहा था, ये हमारे भाई मान रहे इस बात को कि अल्लाह बोर हो रहा था, इसके जैसे गेम बना दिया। डेफिनेटली हो सकता भाई है। साहब जो है शायद वो देख रहे थे अल्लाह मियाँ को जो है वो बोर हो रहे थे। खैर ठीक है, मुझे कुछ काम जो है मेरे सामने आ गया, मैं जो है जी। चलता हूँ।